محترم سامعین کرام، انشاءاللہ ہم بہت جلد دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ کل سعودی کے اندر چاند ہو گیا اور عشر ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج یہاں بھی چاند ہوگا اور کل سے ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، جو کہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عشر ذی الحجہ کے فضائل۔ عشر ذی الحجہ کی یہ فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو یہ شرک ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہے ان کی قسمیں کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی، انہی میں سے یہ عشر ذی الحجہ بھی ہے جس کی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی، جیسا کہ سورہ فجر کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن ہیں، جیسا کہ جمہور مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی رائے کو درست قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی روایتیں مروی ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن 10 عشرے کے دن ہے، یعنی عشر ذی الحجہ کے دن ہے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں کے اندر اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے تو وہ عمل بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کے اندر عمل کے برابر نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ، سوائے اس آدمی کے عَفَرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ، جو اپنے چہرے کو خاک آلود کر دے، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے۔ یہ مسند بزار کے ابن حبان کی روایت سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد کے اندر بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ تمام دنوں میں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب، جتنا ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اتنا کسی اور دن کے اندر نہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد فی سبیل اللہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور اپنا سارا مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل پڑے اور پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی اس کا پورا مال بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہو جائے اور اس کی جان بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے، ایسا انسان یقیناً افضل اور بہتر ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اسی معنی کی روایت صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 969 کے اندر موجود ہے۔
इसी तरह से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सहीह तरगीब व तरहीब में एक रवायत है, मा मिन अय्यामिन अज़का इंदल्लाहि वला अज़मु अजरन मिन खैरिन यअमलुहु फी अशरिल अज़हा, कि कोई ऐसा दिन नहीं है, मा मिन अमलिन अज़का इंदल्लाहि वला अज़मु अजरन मिन खैरिन यअमलुहु फी अशरिल अज़हा, कुर्बानी का जो अशरा है, यानी ज़िलहिज्जा का पहला अशरा, उन दिनों के अंदर नेक अमल करना अल्लाह ताला के नजदीक जितना ज्यादा पाकीज़ा और जितना ज्यादा सवाब के लायक है, जितने बड़े सवाब का मुस्तहिक है, उतना किसी और दिन के अंदर नहीं। तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं? आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं, सिवाय उस शख्स के जो अपने जान और माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है। इस तरह से ये सारी रिवायतें इस बात पर दलालत करती हैं कि अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर नेक अमल करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब है। यानी दूसरे दिनों के अंदर आप अल्लाह के रास्ते अपने जान और माल को कुर्बान करके जो सवाब हासिल कर सकते हैं, कि एक आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने पूरे माल को लेकर अपनी जान के साथ निकल खड़ा हो, अल्लाह के दीन की सबलंदी के लिए जिहाद कर रहा हो, और जिहाद करते करते उसका माल भी उसमें कुर्बान हो जाए, उसका माल भी लग जाए, उसकी जान भी कुर्बान हो जाए, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, कोई भी चीज लौट कर ना आए, वो आदमी जो सवाब पाता है, जो फजीलत पाता है, अल्लाह का जो दर्जा पाता है, इन 10 दिनों के अंदर नेक अमल करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, सदका खैरात करने वाला, अल्लाह का जिक्र करने वाला, तिलावत कुरान करने वाला, भलाई का हुक्म देने वाला, बुराई से मना करने वाला, जितने भी नेकियां हैं इन 10 दिनों के अंदर जो अमल करता है वो उसी के बराबर सवाब पाता है। अल्लाह अकबर! क्या मौका, क्या बेहतरीन चांस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको दिया है कि हम इन 10 दिनों के अंदर ज्यादा ज्यादा नेकियां करके, आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, आप एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं, आप एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और आपको वो सवाब मिल रहा है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का सवाब मिलता है, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल को कुर्बान करने वाला जो सवाब पाता है। जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करके लौट आए, वो भी वो सवाब नहीं पाता है, वो भी उसके मुकाबले में कम है, सिवाय उसके जो अपनी जान और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता है, वो उसकी बराबरी क्या कर सकता है। आप तसव्वुर कीजिए कि कितना अफजल तरीन ये आशरा है, कितने अफजल तरीन ये अय्याम हैं जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको नेकी करने पर उभारा है। कि आप तो अपने घर में आराम से बैठे हुए कुरान करीम की एक आयत पढ़ते हैं, आप रास्ते में चलते फिरते अपने कारोबार करते हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, और आपको सवाब कितना अजीम मिल रहा है। हालांकि अल्लाह के रास्ते में एक लम्हे का जिहाद भी दुनिया और दुनिया दोनों चीजों से बेहतर है। अल्लाह के रास्ते में अगर किसी के पैर भी खाक आलूद हो जाएं तो जहन्नम की आग उसे उस पैर को जला नहीं सकती। इतना अफजल तरीन अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के कोहार, इस्लाम की बुलंदी करार दिया है, लेकिन उससे भी बढ़ जाता है इस असरे के अंदर नेक अमल करना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमल करने वाले मुसलमानों को, मोमिनों को एक बेहतरीन, एक गोल्डन चांस दिया है। और हम आप जानते हैं कि हमें और आपको नेक अमल करने के लिए ही पैदा किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी और मौत को पैदा ही इसीलिए किया है ताकि वो देखे कि तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने इस जमीन के ऊपर जो कुछ भी है ये इसीलिए सजाया है, इसीलिए इसे मुज़य्यन किया है जमीन को, ताकि देखें कि इनमें से अच्छा अमल करने वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अच्छा अमल करने के लिए दुनिया के अंदर पैदा किया है, हमारी जिंदगी मौत का सिलसिला रखा है। ये पूरी कायनात हमारे लिए सजाई है। ये कायनात के ऊपर जो कुछ भी नेमतें आप देख रहे हैं ये आपके लिए है, और आप इसलिए पैदा किए गए हैं कि आप दुनिया के अंदर रहते हुए नेक अमल करें। और अमल करने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे मौके देते रहता है।
کہ थोड़े से दिनों में थोड़ा सा अमल करके आप ज्यादा सवाब हासिल कर लें। बहुत सारे आपको ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे कि रमजान का महीना गुजरा, रमजान का आखिरी अशरा आपके लिए कितना अफजल, उसकी रातें कितनी बेहतरीन थी। इसीलिए हमारे असलाफ इन अशरों की, इन दिनों की बड़ी कदर किया करते, जैसा कि अबू उस्मान अन-नहदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमारे असलाफ 3 अशरों की बड़ी कदर किया करते थे, एक रमजान का आखिरी अशरा, और एक जुल्हिज्जा का पहला अशरा, और एक मुहर्रम का अशरा। मुहर्रम के अशरे से मुराद मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा। वैसे पूरा मुहर्रम का महीना रोजा रखने के लिए सबसे अफजल तरीन महीना है नफली रोजों के लिए, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि फर्ज रोजों के बाद सबसे अफजल तरीन रोजे मुहर्रम के रोजे, फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल तरीन नमाज रात की नमाज है, तहज्जुद की नमाज। तो ये हमारे अय्याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देता है, ये हमें इनसे भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अब एक सच्चा मुसलमान, एक अमल करने वाला, नेकियों में सबकत करने वाला, उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है, उसके अंदर शौक पैदा होता है कि हमें इन अय्याम को कैसे गुजारना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सारे अमल करने की आजादी दी है कि जो भी अच्छे अमल हैं, जो भी नेक अमल हैं, आप सारे नेक अमल इन दिनों के अंदर अंजाम दें। दूसरे दिनों के अंदर आप जितनी भी नेकियां करते हैं, उनके मुकाबले में इन दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको और ज्यादा नेकियां करने का मौका दिया है। इसीलिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आदमी जो सबब समझ में आता है, जाहिर होता है कि ये अशरा इतना अफजल क्यों है, कहते हैं गौर करने पर यह बात जाहिर होती है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी बड़ी इबादतों को जमा कर दिया है इस अशरे के अंदर। जैसे नमाज है, आप दूसरे दिनों के अंदर भी पढ़ते हैं, इस दिन के अंदर भी पढ़ते हैं। नफली रोजे हैं, आप दूसरे दिनों के अंदर भी रख सकते हैं, इन दिनों के अंदर भी आप रखते हैं। नफली सदका खैरात है, आप दूसरे दिनों के अंदर भी आप देते हैं, इस दिन के अंदर भी आप करते हैं। लेकिन हज आप दूसरे दिनों के अंदर नहीं कर सकते हैं। हज आपको इसी अशरे के अंदर करना है। हज उम्रा आप अदा करते हैं इस अशरे के अंदर। और तकबीर और तहलील, तस्बीह, कुरान करीम की तिलावत, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए इस अशरे के अंदर जमा कर दी हैं। तो आप इन सब में सबकत करें। जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात दी है वो हज करे, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तात नहीं दी है, हज करने नहीं जा सकता है, यहां रहते हुए भी हज का सवाब हासिल कर सकता है। आप फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर ठहरे रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, तिलावत करते रहें, तस्बीह और तहलील में मशगूल रहें, और उसके बाद जब सूरज निकल जाए, एक नेज़ा बुलंद हो जाए, चाश का वक्त हो जाए, आप 2 रकात नमाज पढ़कर अपने घर जाएंगे तो आपको एक हज और उम्रे का सवाब मिलता है। आप रोजाना सवाब हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमेशा नमाजें पढ़ते हैं, इन दिनों के अंदर आप और इत्मीनान से, आप और बेहतर तरीके से, आप फराइज के साथ साथ नफिल का एहतमाम करते हुए इन दिनों के अंदर नमाज अदा करें। कि जैसे और दिनों के अंदर आपकी रकात छूटती थी, इन दिनों के अंदर ना छूटे। कोशिश करें कि आप अजान से पहले मस्जिद में पहुंचे रहें। कोशिश करें कि आपकी सुन्नतें मुक़द्दा, सुन्नतें गैर मुक़द्दा ना छूटे, आपकी चार की नमाज ना छूटे, आपकी तहज्जुद की नमाज ना छूटे। सबको अदा करने की कोशिश करें इन 10 दिनों के अंदर। इन 10 दिनों के अंदर आप जब भी मस्जिद में दाखिल हो, तहियतुल मस्जिद अदा करें। अगर लापरवाही पहले होती थी तो अब लापरवाही ना हो, आप बावजूद रहने की कोशिश करें। आप कुरान करीम की तिलावत करें कसरत से। आप इन 10 दिनों के अंदर कसरत से सदका और खैरात करें। एक मामूल बना लें कि 10 दिनों के अंदर मुझे डेली इतना इतना सदका करना है, क्योंकि ये 10 दिन बड़ी तेजी के साथ गुजर जाएंगे और फिर सवाए पछतावे को कुछ नहीं होगा। इसलिए ये अय्याम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिए हैं, इन्हें आप गुजारें, बल्कि आप इनके अंदर नफली रोजे भी रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सही अबू दाऊद की रिवायत, अबू दाऊद और नसई की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रोजे नहीं छोड़ते थे कभी। 3 रोजे पाबंदी के साथ रखते थे। 3 रोजे कौन से हैं? यसूम तिस्अ हिज्जा व यौम आशूरा व सलासा अय्यामिन मिन कुल्ल शहर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 रोजे,
यानी पहले अशरे के 9 रोजे, क्योंकि 10वीं तारीख को ईद है और ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते हैं। अगर आप रोजा रखना चाहें तो 9 दिन के अंदर आप रख सकते हैं। और यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा, और हर महीने के 3 रोजे, हर महीने के 3 रोजे, चाहे आप अय्याम 20 के रोजे रखें, 13, 14, 15 तारीख को जो अय्याम 20 के रोजे कहलाते हैं, अगर वो ना रख सके किसी वजह से, तो जो भी आपको मैसर हो, हर महीने 3 रोजे अगर आप रखते हैं तो ये गोया कि पूरे महीने का सवाब आपको मिलता है। और इस तरह से अपना मामूल बनाएंगे तो आपको आपकी पूरी जिंदगी रोजे से गुजरती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अमल पर कम से कम 10 नेकी देता है, 10 नेकी देता है। तो 3 रोजे रखने पर आपको 30 दिन का सवाब मिलता है। हर महीने अगर आप ये मामूल बना लेते हैं तो आपके पूरे साल रोजे से गुजरते हैं। सही मुस्लिम के अंदर एक रवायत है कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइमन क़त्तु फिल आश्र, साइमन फिल आश्र क़त्तु, कि मैंने कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अशरे ज़िलहिज्जा में रोजा रखते हुए नहीं देखा। ये सही मुस्लिम की रवायत है। इसकी उलमा ने तावील की है कि एक अबू दाऊद की रवायत के अंदर क्या 9 ज़िलहिज्जा का रोजा रखते थे, और इसी अशरे ज़िलहिज्जा के अंदर यौम अरफा भी आता है। और सही मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया यौम अरफा के रोजे के बारे में, तो आपने फरमाया कि यौम अरफा का एक रोजा इतना अफजल है कि अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल माज़िया अन युकफ्फिर सनतल लती क़ब्लहु वल्लती बादहु। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि यौम अरफा का एक रोजा यानी 9 ज़िलहिज्जा का एक रोजा एक साल पिछले और एक साल अगले 2 साल के गुनाहों को मिटा देता है। तो ये रोजा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे, और ये रोजा आपने रखने का हुक्म दिया है, इसकी तरगीब दी है आपने। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो कौल है कि पूरे अशरे ज़िलहिज्जा का रोजा आपने कभी नहीं रखा, तो उलमा ने इसकी तावील की है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इस डर से न रखा हो कि कहीं उम्मत पर फर्ज न कर दिया जाए, जैसे कि अल्लाह के मामूल दूसरे मामलात में मिलते हैं कि इस डर से आपने तरावी की नमाज छोड़ दी थी कि कहीं लोगों में फर्ज ना हो जाए। तो ऐसे ही अल्लाह ने हो सकता है पाबंदी के साथ ना रखा हो, इसलिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना मुशाहिदा बयान करती कि मैंने कभी भी अल्लाह के रसूल को रखते हुए नहीं देखा है, वरना कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया है, बल्कि तमाम अमल साले पर उभारा है, और तमाम अमल साले के अंदर रोजा भी दाखिल है। और खुसूसन 9 ज़िलहिज्जा का रोजा ये सबसे अफजल तरीन रोजा है कि अल्लाह ताला इसके जरिए से 2 साल के गुनाहों को आपको मिटा देता है, 1 साल पहले और 1 साल बाद में। लेकिन ये रोजा यौम अरफा का ये रोजा ये सिर्फ गैर हाजी के लिए है। जो हुज्जाज किराम मैदान अरफात में होते हैं उनके लिए रोजा मसनून नहीं है। उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी फजीलत रखी है कि यौम अरफा में जो हाजिरी देते हैं अल्लाह ताला उन पर इंतहाई फख्र करता है, उनसे खुश होता है, उनकी सारी दुआएं कबूल करता है, उनके सारे गुनाहों को बख्श देता है। और बल्कि जिनके बारे में उन्होंने दुआ की होती है उन सब के बारे में भी अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है, और उन्हें खुशखबरी सुनाई जाती है कि जाओ अब तुम आगे जिंदगी के लिए अमल करो, पिछले तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। तो इन्हीं आशरे इसी दिनों के अंदर 10 दिनों के अंदर यौम अरफा भी है जिसकी फजीलत है। इसी तरह से इन्हीं 10 दिनों के अंदर यौमुन नहर भी है जिसे कुर्बानी का दिन कहा जाता है, इसकी भी बड़ी फजीलत है। अलग से अल्लाह के रसूल फरमाया अअज़मुल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर व यौमुल क़र्र। यह अबू दाऊद और नसई की रवायत है, अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है कि सबसे अफजल तरीन दिन अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर, सबसे बड़े दिन अल्लाह के नजदीक यौमुन नहर व यौमुल क़र्र। यौमुन नहर यानी कुर्बानी का दिन है, 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, और उसके बाद यौमुल क़र्र यानी मिना में हाजियों के ठहरने का दिन, यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा। तो गोया कि 1 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा तक ये अय्याम बड़े ही कीमती। इन 13 दिनों के अंदर हमें कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना चाहिए, हुज्जाज किराम को भी तकबीर पुकारते रहना चाहिए, और गैर हुज्जाज जो हैं जो अपने घरों पर हैं उन्हें भी तकबीर पुकारते रहना चाहिए। इस नाहिए से ये दिन बड़े कीमती हैं, बड़े अहम हैं। इसी तरह से यूं तो मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इन दिनों के अंदर हम सारी अपनी नेकियों को बढ़ा चढ़ा करके बड़े एहतमाम के साथ रख सकते हैं, लेकिन खुसूसियत के साथ जिस चीज का ज्यादा एहतमाम करना चाहिए वो है तकबीरात, वो है अल्लाह का जिक्र, वो है तकबीर, तहलील, तहमीद, तस्बीह। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र
یہ کثرت سے کرنا چاہیے. جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن کے اندر نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے. جتنا ان دنوں کے اندر اللہ کو نیک عمل محبوب ہے اتنا کسی اور دن کے اندر نہیں ہے. تو کیا کرو, فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. تو ان دنوں کے اندر خوب کثرت سے تم اللہ رب العالمین کی تکبیر, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ اکبر کہو, تحلیل کرو, اللہ کی الوہیت بیان کرو, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو, والتحمید اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, الحمدللہ کہو. یعنی اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو ان دنوں کے اندر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو ابھارا ہے. اور یاد رکھیں کہ ایسے ہی عام دنوں کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ اس لاہی سے اس کا اندازہ لگائیں اور تصور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ اکبر. ہم یہاں بیٹھے اللہ رب العالمین کا ذکر جب کرتے ہیں, اپنی زبان پر اللہ کا نام لاتے ہیں, سبحان اللہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے, اللہ رب العالمین ہمارا ذکر وہاں کرتا ہے. یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے, کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین اگر آپ کی زبان پر اللہ کا نام کبھی بھی کسی بھی لمحے میں آتا ہے, آپ تصور کریں فوراً آپ کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے یاد کیا ہے. یہ کتنے بڑے شرف کی بات. سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فاذکرونی, مجھے یاد کرو, اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. اور ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے معاملہ کروں گا. یعنی وہ اگر مجھے یاد رکھتا میں بھی یاد رکھتا ہوں, مجھے بھول جاتا میں بھی اس کو بھول جاتا ہوں, اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. آپ جتنا اللہ رب العالمین کی پرواہ کریں گے, اس کی فکر کریں گے, اس کا ذکر کریں گے, اس کو یاد رکھیں گے, اس کے حکموں کو یاد رکھیں گے, اس کی عبادت میں آپ کا جتنا دل لگے گا اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی متوجہ ہوگا. اللہ رب العالمین آپ کو اتنا ہی فکر کرے گا, اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ہم جب کہیں تنہائی میں ہو, کوئی ہمارے ساتھ نہ ہو, کوئی ہمارے آگے پیچھے نہیں, انسان کبھی کبھی دنیا کے اندر بہت اکیلا محسوس کرتا ہے کہ سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کوئی نہیں ہے. آپ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ذکرنی عبدی فإن ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی, جب میرا بندہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو اس سے بہتر مجلس میں, فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. جب بندہ میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے اللہ کے بندے کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کلمات ہمیں سکھائے ہیں کہ ان کلمات کو اگر ہم کہیں تو چھوٹے چھوٹے کلمے کتنی نیکیاں ہمیں آپ کو دیتے ہیں ہمارا تصور نہیں کر سکتے. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ, یہ چھوٹا سا کلمہ ہے, کتنا ثواب ملتا ہے اس چھوٹے سے کلمے سے کہنے سے. ہم نے ایک بار کہا سبحان اللہ والحمدللہ, کتنا ثواب ملا. زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان جتنی بھی خلا ہے پوری نیکیوں سے بھر گئی. اللہ اکبر. زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے پوری نیکیوں سے بھر جاتی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کے ذکر کا, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے وسلم میں بہت سارے اعمال کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, سب کا خیرات کرتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, کچھ خاص ہمیں وصیت کر دیجیے, کچھ خاص میں بتا دیجیے. آپ نے زبان پہ اشارہ کیا, کہا اپنی زبان پر اللہ کے ذکر میں تر رکھو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے الطہور فطر الایمان, پاکی اور صفائی آدھا ایمان. والحمدللہ تملأ المیزان, اور ایک بار الحمدللہ کہنا یہ میزان کو, ترازو کو بھر دیتا ہے. اور وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان وتملأ ما بین السماوات والارض, اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری جگہ بھر جاتی ہے.
یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 223 है। इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा जिक्र है, वैसे तो बहुत सारे कलमात, एक हदीस के अंदर है कि कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान, सही बुखारी की आखिरी हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान सकीलतानी फिल मीजान खफीफतानी अलल लिसान, या खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीजान। दो कलमे रहमान को बहुत पसंद है और वो जुबान पर बड़े हल्के हैं लेकिन तराजू में बड़े वजनी। वो दो कलमे क्या है? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे अल्लाह को इतने पसंद है कि जुबान पर अल्लाह ने हल्के भी किए, कहने में कुछ वक्त, कुछ मेहनत, कुछ टाइम नहीं लगता है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन तराजू में बड़े वजनी। ऐसे ही चार कलमे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महबूब है, अल्लाह को भी महबूब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इन्हें अपने लिए पसंद करते थे कि मैं इनको कहता रहूं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कलमों से मोहब्बत करता है। जैसा कि सही मुस्लिम की रवायत है, हदीस नंबर 2137, फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहब्बुल कलाम इलल्लाहि तआला अर्बउन, चार कलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़े महबूब है। ला यज़ुर्रुका बिअय्यिहिन्न बदाता, उन चारों कलमों में से कोई फर्क नहीं पड़ता आप जिस कलमे से भी आप शुरू करें, चारों में से अगर कोई कलमा आगे पीछे हो जाए कहने में कोई फर्क नहीं। वो चार कलमे क्या हैं? गिन लीजिए, उन्हें कहते रहिए, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये चार कलमे ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़े महबूब हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया, सही मुस्लिम ही के अंदर रवायत है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि आपने फरमाया लअन अक़ूल सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अहब्बु इलैया मिम्मा तलअत अलैहि शम्स। ये चार कलमे कहना मुझे इतना पसंद है कि उन तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है। सूरज की रोशनी जहां जहां पड़ती, जिन चीजों पर पड़ती है, जिन पर सूरज तुलू होता है, सारी दुनिया से बेहतर मेरे लिए कलमा है। सारी दुनिया मिल जाए उतनी खुशी नहीं होगी जितना खुशी कलमे से कहने से होती है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और ये कलमे इतने महबूब हैं, तिरमिजी की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला, जब मुझे मेराज कराया गया, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिला तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा और अपनी उम्मत से कहना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी पाकीज़ा है, उसका पानी बड़ा मीठा है, और जन्नत पूरी चटियल मैदान है, जन्नत पूरी खाली पड़ी बहुत बड़ा मैदान है, और जो कब्जा करना चाहे, जो उसमें पौधे लगाना चाहे, तो उसका पौधे लगाना क्या है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जन्नत की खेती है, आप जितना इसको कहते जाएंगे जन्नत की उतनी जमीन आपके नाम लिखी जाएगी और आपसे पौधे लगते जाएंगे, आपका कब्जा हो जाएगा उस पर। आप बम्बई के अंदर किसी को कहा जाए कि पूरी जमीन खाली पड़ी, जितना चाहो कब्जा कर लो, जो जितने पौधे लगाएगा, जितने घर बनाएगा उसके हो जाएंगे, आदमी जी जान से उसके पीछे लग जाएगा, अपने आप को हिला कर डालेगा। जन्नत की मिट्टी का क्या कहना, सबसे पाकीज़ा मिट्टी है, उसका पानी सबसे मीठा पानी है, और जन्नत के अंदर एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। वह आपके लिए मौका दिया जा रहा है कि आप उसके अंदर खेती कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी अबू हुरैरा को देखा, एक बार की पौधा लगा रहे हैं, कहा अबू हुरैरा मैं तुम्हें इससे बेहतर खेती बताऊं, इससे बेहतर पौधा लगाने की जगह बताऊं? कहा अल्लाह के रसूल जरूर बतलाइए क्या है। आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जब एक बार तुम सुबहान अल्लाह कहते हो तो जन्नत में तुम्हारे लिए एक खजूर का दरख्त लग जाता है, तुम एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो जन्नत में तुम्हारे लिए एक खजूर का दरख्त लग जाता है, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो एक दरख्त लग जाता है, अल्लाह अकबर कहते हो एक दरख्त लग जाता है। ये जन्नत की खेती है। ऐसे और भी फजीलतें इसकी है कि बंदा जब एक बार कहता है सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी साथ में मिला लेता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर हो, उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इसी तरह से इस कलमे के ताल्लुक से फरमाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ढाल को ले लो। ढाल, जब मैदान जंग में लोग लड़ते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है वार करने के लिए, और एक हाथ में ढाल होती है वार को रोकने के लिए, बचने के लिए। तो सहाबा ने कहा अल्लाह वसल्लम कौन सी ढाल ले लें?
क्या दुश्मन हमला करने वाला है कि उससे बचाव के लिए हम ढाल ले लें? आपने फरमाया कि नहीं, ये कहो सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये तुम्हें नजात देने वाली है, ये जहन्नम से ढाल बनने वाली है और तुम्हें जन्नत में आगे बढ़ाने वाली। फ़इन्नहुन्ना यातियन्ना यौमल क़ियामति मुंजियातिन व मुक़द्दिमातिन व हुन्नल बाक़ियात, ये तुम्हें जहन्नम से बचाने वाली, ढाल बनने वाली हैं, जन्नत में आगे बढ़ाने वाली हैं, दर्जा को तुम्हारे बुलंद करने वाली हैं और तुम्हारे लिए बाक़ियातुस सालिहात हैं, यही तुम्हारे बाकी रहने वाली नेकियां हैं। जब कोई बंदा सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये कलमे अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और इन कलमों से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ये अपने जिक्र करने वाले का नाम लेते हैं। वहां जैसे शहद की मक्खियों की आवाज होती है, ऐसे इनकी आवाज होती है, वहां ये नाम लेते हैं, तुम्हारा जिक्र करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि हमेशा उसका जिक्र वहां किया जाए, अल्लाह के अर्श के पास तुम्हारा जिक्र किया जाए? तुम्हें पसंद है तो ये कलमात कहा करो। और भी बड़े फजाइल है इसके। एक बार सहाबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो बड़ी नेकियां कमा ले जाते हैं, हम लोग पीछे रह जाते हैं। गरीब साहबा ने शिकायत की। कहा कैसे? कहा हम भी नमाज पढ़ते, वो भी नमाज पढ़ते, हम भी रोजा रखते, वो भी रोजा रखते हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें माल दिया है, वो सदका करते हैं, नेकी कमाते हैं, और हमारे पास माल नहीं, सदका नहीं कर पाते, तो हम क्या करें? आपने फरमाया कि क्या अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी चीजें नहीं बनाई कि तुम उनके जरिए सदका करो? एक बार सुभान अल्लाह कहना भी सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। ये कलमा तुम कहते रहेंगे तुम्हारे सदका है। ऐसे भलाई का हुक्म देना सदका है, बुराई से मना करना सदका है। आपने बहुत सारी नेकियां गिनाई, बल्कि इनसे गुनाह कैसे झड़ते आपने अमली तौर पर दिखाया। एक बार इस दरख्त से गुजरे, उसके पत्ते सूखे हुए थे, आपने डंडा मारा, उसके ऊपर पत्ते झड़ गए। आपने सहाबा से कहा जब कोई आदमी सुभान अल्लाह कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते जैसे दरख्त के पत्ते झड़ गए। और भी रवायतें हैं इसकी फजीलत में। ये 4 कलमे आप याद कर लें और इसको कसरत से कहते रहें। ये भी इन अफजल अय्याम के अंदर आपके लिए बहुत ही मुफीद कलमात हैं। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये इन दिनों के अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र करते थे, तकबीर पुकारते थे, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। और बाजारों में निकल जाते थे, लोग सुनते थे और लोग पुकारना शुरू करते थे। तो आप खुद भी अल्लाह का जिक्र कर, अल्लाह के बड़े बयान करें और इस तरह से लोगों को सुनाएं कि लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, लोग भी अल्लाह का जिक्र करें। ये चंद बातें थी जो अशर ज़ुल हिज्जा के फज़ाइल उससे अमाल के ताल्लुक से मैंने हज़रात के सामने रखी। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि चूंकि आज हो सकता है चांद हो, ज्यादा कभी उम्मीद है कि आज चांद होगा, इसलिए जो भाई कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपने बाल और नाखून आज सूरज डूबने से पहले काट लें, क्योंकि चांद निकल जाने के बाद कुर्बानी करने तक बाल और नाखून काटना मना है। इसी तरह से कुर्बानी के जानवर खरीदने के भी दिन करीब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कुर्बानी जानवर खरीदेंगे। इंशाअल्लाह अगले खुतबे के अंदर तफसील के साथ कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाएंगे। लेकिन ये बातें याद रखें कि कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त आप उसके अंदर कम से कम 6 ऐबों का ध्यान रखें। एक तो ये कि वो काना ना हो, एक तो ये कि लंगड़ा ना हो, कोई जाहिरी बड़ी बीमारी ना हो, बिल्कुल जो वाज़े हो, या इतना कमजोर ना हो जिसके अंदर वो गूदा ही ना हो, या उसका कान कटा हुआ ना हो, उसकी सींग टूटी हुई ना हो। इन 6 ऐब के जानवरों को खरीदने की कोशिश ना करें और सही सालिम जानवर और तंदूरी जानवर खरीद करके कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह तफसील के साथ अगले जुमा के अंदर आप सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अफजल अशर अता फरमाए, इस अफजल अशर के अंदर हमें नेकियां करने की तौफीक फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे दिन इस्लाम पर जिंदा रखे, जब भी दुनिया से उठाए हाल से ईमान पर उठाए, जन्नतों से हमारा ठिकाना बनाए, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह